department. It is unique to an individual or entity, and it is valid across the country. PAN once allotted to an individual or entity is unaffected by a change of name, address within or across state in India or other factors. What are the right options? Only 1, 2 and 3, only 1, 2, 3 and 4, only 1/3 and 4th, all of the above are correct. You have to tell me which among the following is the right answer. Okay, so I hope आप आंसर्स चैट में दे सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं. ऑल्सो इफ यू आर न्यू ऑन ऑफिसर अड्डा 24/7, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल, प्रेस द बेल आइकन सो दैट आपको जितने भी रीसेंट अपडेट हैं वो मिलते रहें. वंस यू सब्सक्राइब टू द चैनल, यू विल ऑल्सो गेट द प्ले लिस्ट फॉर ऑल द सेशंस दैट आर हैपनिंग. तो यहाँ पे ऐसा नहीं कि सिर्फ एएफएम का ही सेशन होता है. एएफएम के साथ साथ आपका पीपीबी, आरबीडब्ल्यूएम सबके सेशन फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं. सब्सक्राइब करते ही आपको प्लेलिस्ट का ऑप्शन मिल जाएगा एंड आप उस सारी प्लेलिस्ट में जितने भी पास्ट में भी सेशन हुए हैं उनको भी देख सकते हैं. चलिए, आई होप आपने ये सेशन शेयर कर दिया होगा. लेट्स डिस्कस. सो पहला आंसर दिया हुआ है, पहला ऑप्शन दिया है परमानेंट. पैन स्टैंड्स फॉर परमानेंट अकाउंट नंबर. करेक्ट, विच इज करेक्ट. पैन स्टैंड्स फॉर परमानेंट अकाउंट नंबर. देन it is a 10-digit numeric number issued by the income tax department. So definitely it is issued by income tax department. Correct, ये income tax department के द्वारा ही issue किया जाता है. But the option being that it is a 10-digit numeric number is a problem. Why is it a problem? Because it is not only a numeric number, it is alphanumeric. Alphanumeric का मतलब क्या होता है? Which includes alphabets as well as numbers. करेक्ट. तो अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल दूं, फॉर एग्जाम्पल 10 डिजिट्स है, 10 कैरेक्टर्स है ना. नाउ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जिसमें से 4 आपके नंबर्स होते हैं और 6 आपके अल्फाबेट्स होते हैं. दैट इज हाउ इट इज सीक्वेंस्ड. ठीक है. सो आई होप यहां तक सबको क्लैरिटी है. नाउ इट इज यूनिक टू एन इंडिविजुअल और एंटिटी and it is valid across the country. Now it is unique to an individual. Definitely all of us we have our own unique PAN number. हम लोगों के नाम मैच कर सकते हैं बट किसी से हमारा जो PAN नंबर है वो मैच नहीं कर सकता है ना. हम सबका जो PAN नंबर है दैट इज यूनिक, राइट, एंड इट विल नॉट मैच टू एनी अदर इंडिविजुअल. ठीक है. तो डेफिनेटली इट इज अ यूनिक नंबर एंड इट विल नॉट, इट कैन नॉट बी सेम, right, or it cannot match to any other person. Then PAN once allotted to individual or entities unaffected by change of name, address within or across state in India or other factors. That is also correct. Once it is allotted, it will not change things. It will remain same whether whether you change your address or anything, but this will remain same. So the answer would be that the second statement is wrong. So this option goes wrong. This option goes wrong. This option goes wrong. Right answer will be option number C. ठीक है. Then next one. Which of the following best describes a difference between fixed cost and variable cost in the context of costing for a producer? Fixed costs are only relevant for service providers while variable cost apply to product manufacturers. Fixed costs change directly with the level of production, whereas variable costs remain constant. Fixed cost remains constant regardless of the level of production, while variable cost changes with production level. Both fixed and variable cost are always expressed as percentage of revenue.
क्या होगा राइट आंसर? Now here we are talking about fixed cost and variable cost. Correct. So here we'll be talking about fixed and variable cost. Correct. चलिए स्टार्ट करें. नो पहला स्टेटमेंट कहता है फिक्स कॉस्ट आर ओनली रेलेवेंट फॉर सर्विस प्रोवाइडर वाइल वेरिएबल कॉस्ट अप्लाइड टू प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर. दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग. Fixed cost charged directly with the level of production, whereas variable cost remains constant. No. Fixed costs remain constant regardless of the level of production, while variable cost change with the production level. This is correct. Now let me explain you. See fixed cost क्या होती है. जैसे मैं आपको बोलती हूँ मैंने 100 क्वांटिटी, मैंने एक क्वांटिटी बनाई, एक पेन बनाया, ठीक है. मेरी जो वेरिएबल कॉस्ट है, वेरिएबल कॉस्ट होती क्या है पहले तो, वेरिएबल कॉस्ट में आएगा आपका रॉ मटेरियल, लेबर, एसेट्रा. ठीक है. अब एक पेन बनाने में मुझे 8 रुपए की प्लास्टिक लग रही है, 10 रुपए की चलो रॉ मटेरियल और लेबर लग रहा है, और मेरा रेंट जा रहा है इसके लिए 10,000 रुपये फैक्ट्री का. मैं अगर 100 पेन बनाती हूँ तो मेरी वेरिएबल कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 1000. बट मेरा रेंट कितना रहेगा? 10,000. लेट से मैं 1000 क्वांटिटी बनाती हूँ, ठीक है. मेरी वेरिएबल कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 10,000. मेरा रेंट तो भी कितना सेम रहेगा? 10,000. मैं 10,000 क्वांटिटी बनाती हूँ, मेरी वेरिएबल कॉस्ट हो जाएगी 1,00,000, बट मेरा रेंट तब भी कितना रहेगा? 10,000. तो फिक्स कॉस्ट जो है वो कांस्टेंट रहती है विद द लेवल ऑफ प्रोडक्शन, वाइल वेरिएबल कॉस्ट जो है वो चेंज करती है विद प्रोडक्शन लेवल. नेक्स्ट वन, what is the primary difference between service costing and unit or single output costing? What will be the right answer? Also share the link of the session among your friends and colleagues. जल्दी से बताइए क्या होगा राइट आंसर. ये दोनों कॉस्टिंग के मेथड्स हैं, जिसके थ्रू हम प्रोडक्ट या सर्विसेज की कॉस्ट निकालते हैं, कंप्यूटेशन करते हैं.
नाउ चलिए, सर्विस कॉस्टिंग किससे रिलेटेड है? सर्विस कॉस्टिंग इज रिलेटेड विथ कंप्यूटेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ सर्विस। ठीक है, जो सर्विसेज हम प्रोवाइड करते हैं, है ना, उसकी कॉस्ट कंप्यूट करने के लिए जो मेथड हम लोग यूज करते हैं, राइट, वी कॉल इट एज सर्विस कॉस्टिंग। यूनिट और सिंगल आउटपुट कॉस्टिंग किससे रिलेटेड है? अच्छा, इससे पहले जहां जहां पे आपको लिखा है मैन्युफैक्चरिंग, वो तो गलत हो जाएगा, करेक्ट। नाउ सिंगल आउटपुट कॉस्टिंग इज यूज्ड वेयर इन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। इसको हम लोग कहाँ यूज करते हैं? मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। ठीक है, तो राइट आंसर ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट वन, what role does activity based costing primarily play in achieving the objective of cost accounting? Activity based costing is also a method of costing. ठीक है, in order to achieve the objective of cost accounting, how does or what role will ABC play? What role does activity based costing primarily play in achieving the objective of cost accounting? Now see, ABC costing is a method जहां पे हम cost का जो allocation करते हैं, expenses का जो allocation करते हैं, that is done on the basis of activities. ठीक है, हम क्या करते हैं? एक्टिविटीज के बेसिस पे करते हैं। ठीक है, तो इट इज यूज्ड फॉर एक्सटर्नल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग टू इन्वेस्टर एंड स्टेक होल्डर. It is primarily used to analyze the market trend and customer preference. So it is not related to market. It is employed to allocate indirect cost to different product, process or department based on the activities that they incur those cost. ठीक है, not related to external, not related to method of tracking the performance. The right answer here will be option number C. Next one. Which costing system focuses on differentiating between fixed and variable cost and links profit to changes in volume? इनमें से कौन सा ऐसा कॉस्टिंग सिस्टम है जो कि डिफरेंशिएट करता है फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट में और प्रॉफिट को उससे लिंक करता है बाय चेंजिंग इन द वॉल्यूम? नाउ यहां पे दो क्वेश्चन बन सकते हैं. कॉस्टिंग सिस्टम विच डज नॉट डिफरेंशिएट्स and one which differentiates. तो अगर कोई डिफरेंशिएट नहीं करता, दैट इज एब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग. एब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग में वेरिएबल हो चाहे फिक्स कॉस्ट हो, दोनों पर यूनिट बेसिस पे ली जाती है. बट कॉस्टिंग सिस्टम जो कि डिफरेंशिएट करता है, दैट इज योर मार्जिनल कॉस्टिंग, जो कि डिफरेंशिएट करता है बिटवीन fixed cost and variable cost. As I told you, fixed cost remains constant with the volume of production. ठीक है, and variable cost changes with the level of production, with the volume or level of production. जितना ज्यादा प्रोडक्शन बढ़ेगा उतना ज्यादा हमारी वेरिएबल कॉस्ट बढ़ती जाएगी. Then, which statement correctly describes section 80E of the Income Tax Act? It provides a deduction for health insurance premium. It offers a deduction for donation to charitable institution. It allows a deduction for interest on banks taken on loans taken for higher education. It grants a deduction for interest earned on saving account. What will be the right answer? So right answer is, ध्यान रख सकते हैं आप, E is education. E stands for education. So when E stands for education, correct, आप उसको रिलेट कर सकते हो इंटरेस्ट ऑन लोन. जो आप डिडक्शन देता है कि अगर आपने पढ़ने के लिए लोन लिया है तो उस लोन पे जो आप ब्याज पे कर रहे हो, करेक्ट, दैट कैन बी यूटिलाइज ओवर हियर. ठीक है, नेक्स्ट वन. Consider the following statement about the GST in India. Identify which statements are correct and which are incorrect. GST replaced various indirect taxes such as service tax, sales tax, VAT, and central excise duty.
It is a direct tax levied on the income or profit of individual and corporation. The implementation of GST from 1st July 2017 aimed to create a unified tax system and eliminate multiple indirect taxes. Under GST, octroi and surcharges on goods and services continue to be levied separately by state government. GST simplified the tax structure by subsuming the interstate transportation levies. क्या होगा राइट आंसर? Now, GST has replaced various indirect taxes. That is correct. It is a direct tax? No, it is not a direct tax. तो देखो जहां पर भी बोला है स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, तो ये गलत हो गया. ठीक है. नाउ स्टेटमेंट 1 इज ऑल्सो करेक्ट, ये भी हो गया. वैसे तो आंसर देखो आप स्मार्टली ऐसे निकाल सकते हो. The implementation of GST, this is correct. Date is 1st July 2017. Under GST, octroi and surcharges on goods and services continue to be levied, which is wrong. And it is a simplified tax structure which has subsuming का मतलब होता है अपने अंदर engulf कर लेना. So that is correct. Then, which type of contract involves an arrangement where the contractor includes a profit in its billing? Fixed price, cost plus time and material, retention money. जहां पे फिक्स कॉस्ट जहां पे प्रॉफिट बिलिंग के अंदर इंक्लूडेड होता है वो होता है फिक्स प्राइस. कॉस्ट प्लस में क्या होता है? कॉस्ट प्लस प्रॉफिट परसेंटेज. तो हियर द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए. देन according to accounting standard 7 and Ind AS 115, how should profit be recognized on an incomplete contract? Profit should be recognized only after the completion of the contract. Profit should be recognized proportionately during the duration of the contract. It should be recognized upfront, तो आप नहीं कर सकते हो. Correct. It should be recognized based on the contractor's discretion. No. It should be recognized proportionately. हमारा accounting standard 7 and AS 115 जो कि किससे डील करता है? कॉन्ट्रैक्ट से. करेक्ट. तो कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट, तो दैट सेज कि भाई आप जो प्रॉफिट है उसको रिकॉग्नाइज करोगे प्रोपोर्शन में एज द पेमेंट गोज ऑन. Next, evaluate the following statement and identify which are correct and which are incorrect in the context of direct and indirect taxes. Direct tax is imposed on income and profits, while indirect tax is levied on goods and services. Direct tax is directly paid to the government, whereas there is generally an intermediary for collecting indirect taxes from the end consumer. The burden of tax cannot be shifted in case of direct tax, while the burden can be shifted for indirect tax. The probability of tax evasion is lower in the case of indirect taxes. Statement 1, 2, 3 and 4 are correct, 4 is incorrect. Statement 2, 3 and 4 are correct, 1 is incorrect. Statement 1, 3 and 4 are correct, 2 is incorrect. तो पहले देख लेते हैं. डायरेक्ट टैक्स इंपोज हो रहा है इनकम एंड प्रॉफिट पे, विच इज करेक्ट. इनडायरेक्ट टैक्स गुड्स एंड सर्विसेज में, तो जहां पे बोला जा रहा है कि 1 इज इनकरेक्ट, ये तो गलत हो गया. ठीक है, ये आंसर गलत है. देन डायरेक्ट टैक्स इज डायरेक्टली पेड टू द गवर्नमेंट, whereas there is generally an intermediary for collecting indirect taxes from the end consumer. This is also correct. तो ये वाला स्टेटमेंट भी गलत हो गया. Now fourth, the probability of tax evasion is lower in the case of indirect taxes. That is also correct. तो ये वाला स्टेटमेंट भी करेक्ट हो गया, गलत हो गया. तो आंसर क्या होगा? D. All of the above, all the statements here are correct. Which among the following statement are true with respect to PAN? ठीक है, number 1, PAN stands for permanent account number. It is a 10-digit numeric number issued by the Income Tax Department. It is unique to an individual or entity, and it is valid across the country. PAN once allotted to an individual or entity is unaffected by a change of name, address within or across state in India or other factors. What are the right option? Only 1, 2 and 3. Only 1, 2, 3 and 4.
only 1/3 and 4th, all of the above are correct. You have to tell me which among the following is the right answer. Okay, so I hope आप आंसर्स चैट में दे सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं. ऑल्सो इफ यू आर न्यू ऑन ऑफिसर अड्डा 24/7, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल, प्रेस द बेल आइकन, सो दैट आपको जितने भी रीसेंट अपडेट हैं वो मिलते रहें. वंस यू सब्सक्राइब टू द चैनल, यू विल ऑल्सो गेट द प्ले लिस्ट फॉर ऑल द सेशंस दैट आर हैपनिंग. तो यहाँ पे ऐसा नहीं कि सिर्फ एएफएम का ही सेशन होता है. एएफएम के साथ साथ आपका पीपीबी, आरबीडब्ल्यूएम सबके सेशन फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं. सब्सक्राइब करते ही आपको प्लेलिस्ट का ऑप्शन मिल जाएगा एंड आप उस सारी प्लेलिस्ट में जितने भी पास्ट में भी सेशन हुए हैं उनको भी देख सकते हैं. चलिए, आई होप आपने ये सेशन शेयर कर दिया होगा. लेट्स डिस्कस. सो पहला आंसर दिया हुआ है, पहला ऑप्शन दिया है परमानेंट. पैन स्टैंड्स फॉर परमानेंट अकाउंट नंबर. Correct, which is correct. PAN stands for permanent account number. Then it is a 10-digit numeric number issued by the income tax department. So definitely it is issued by income tax department. Correct, ये income tax department के द्वारा ही issue किया जाता है. But the option being that it is a 10-digit numeric number is a problem. Why is it a problem? Because it is not only a numeric number, it is alphanumeric. अल्फा न्यूमेरिक का मतलब क्या होता है? विच इंक्लूड्स अल्फाबेट्स एज वेल एज नंबर्स. करेक्ट. तो अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल दूं, फॉर एग्जाम्पल 10 डिजिट्स है, 10 कैरेक्टर्स है ना. नाउ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जिसमें से 4 आपके नंबर्स होते हैं और 6 आपके अल्फाबेट्स होते हैं. दैट इज हाउ इट इज सीक्वेंस्ड. ठीक है. सो आई होप यहां तक सबको क्लैरिटी है. नाउ इट इज यूनिक टू एन इंडिविजुअल और एंटिटी एंड इट इज वैलिड अक्रॉस द कंट्री. नाउ इट इज यूनिक टू एन इंडिविजुअल. डेफिनेटली ऑल ऑफ अस we have our own unique PAN number. हम लोगों के नाम मैच कर सकते हैं, बट किसी से हमारा जो PAN नंबर है वो मैच नहीं कर सकता, है ना. हम सबका जो PAN नंबर है दैट इज यूनिक, राइट, एंड इट विल नॉट मैच टू एनी अदर इंडिविजुअल. ठीक है. तो डेफिनेटली इट इज अ यूनिक नंबर एंड इट विल नॉट, इट कैन नॉट बी सेम, राइट, और इट कैन नॉट मैच टू एनी अदर पर्सन. देन PAN once allotted to individual or entities unaffected by change of name, address within or across state in India or other factors. That is also correct. Once it is allotted, it will not change. Things, it will remain same whether whether you change your address or anything, but this will remain same. So the answer would be that the second statement is wrong. So this option goes wrong. This option goes wrong. This option goes wrong. Right answer will be option number C. ठीक है. Then next one. Which of the following best describes a difference between fixed cost and variable cost in the context of costing for a producer? Fixed costs are only relevant for service providers, while variable cost apply to product manufacturers. Fixed costs change directly with the level of production, whereas variable costs remain constant. Fixed cost remains constant regardless of the level of production, while variable cost changes with production level. Both fixed and variable cost are always expressed as percentage of revenue. क्या होगा राइट आंसर?
Now here we are talking about fixed cost and variable cost. Correct. So here we'll be talking about fixed and variable cost. Correct. चलिए स्टार्ट करें. नो पहला स्टेटमेंट कहता है फिक्स कॉस्ट आर ओनली रेलेवेंट फॉर सर्विस प्रोवाइडर व्हाइल वेरिएबल कॉस्ट अप्लाई टू प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर. दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग. Fixed cost charged directly with the level of production, whereas variable cost remains constant. No. Fixed cost remain constant regardless of the level of production, while variable cost change with the production level. This is correct. Now let me explain you. Say fixed cost क्या होती है. जैसे मैं आपको बोलती हूँ मैंने 100 क्वांटिटी, मैंने एक क्वांटिटी बनाई, एक पेन बनाया, ठीक है. मेरी जो वेरिएबल कॉस्ट है, वेरिएबल कॉस्ट होती क्या है पहले तो वेरिएबल कॉस्ट में आएगा आपका रॉ मटेरियल, लेबर, एसेट्रा. ठीक है. अब एक पेन बनाने में मुझे 8 रुपए की प्लास्टिक लग रही है, 10 रुपए की चलो रॉ मटेरियल और लेबर लग रहा है, और मेरा रेंट जा रहा है इसके लिए 10,000 रुपए फैक्ट्री का. मैं अगर 100 पेन बनाती हूँ तो मेरी वेरिएबल कॉस्ट कितनी हो जाएगी 1000, बट मेरा रेंट कितना रहेगा 10,000. लेट्स से मैं 1000 क्वांटिटी बनाती हूँ, ठीक है. मेरी वेरिएबल कॉस्ट कितनी हो जाएगी 10,000, मेरा रेंट तो भी कितना सेम रहेगा 10,000. मैं 10,000 क्वांटिटी बनाती हूँ, मेरी वेरिएबल कॉस्ट हो जाएगी 1,00,000, बट मेरा रेंट तब भी कितना रहेगा 10,000. तो फिक्स कॉस्ट जो है वो कांस्टेंट रहती है विद द लेवल ऑफ प्रोडक्शन, वाइल वेरिएबल कॉस्ट जो है वो चेंज करती है विद प्रोडक्शन लेवल. नेक्स्ट वन, what is the primary difference between service costing and unit or single output costing? What will be the right answer? Also share the link of the session among your friends and colleagues. जल्दी से बताइए क्या होगा राइट आंसर. ये दोनों कॉस्टिंग के मेथड्स हैं, जिसके थ्रू हम प्रोडक्ट या सर्विसेज की कॉस्ट निकालते हैं, कंप्यूटेशन करते हैं. नाउ चलिए, सर्विस कॉस्टिंग किससे रिलेटेड है? सर्विस कॉस्टिंग इज रिलेटेड विथ कंप्यूटेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ सर्विस. ठीक है, जो सर्विसेज हम प्रोवाइड करते हैं, है ना, उसकी कॉस्ट कंप्यूट करने के लिए जो मेथड हम लोग यूज करते हैं, राइट, वी कॉल इट एज सर्विस कॉस्टिंग.
यूनिट और सिंगल आउटपुट कॉस्टिंग किससे रिलेटेड है? अच्छा, इससे पहले जहां जहां पे आपको लिखा है मैन्युफैक्चरिंग, वो तो गलत हो जाएगा. करेक्ट. नाउ सिंगल आउटपुट कॉस्टिंग इज यूज्ड वेयर इन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर. इसको हम लोग कहाँ यूज करते हैं? मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में. ठीक है, तो राइट आंसर ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी. ठीक है, नेक्स्ट वन. What role does activity-based costing primarily play in achieving the objective of cost accounting? Activity-based costing is also a method of costing. ठीक है, in order to achieve the objective of cost accounting, how does or what role will ABC play? What role does activity-based costing primarily play in achieving the objective of cost accounting? Now see, ABC costing is a method जहां पे हम cost का जो allocation करते हैं, expenses का जो allocation करते हैं, that is done on the basis of activities. ठीक है, हम क्या करते हैं? एक्टिविटीज के बेसिस पे करते हैं. ठीक है, तो इट इज यूज्ड फॉर एक्सटर्नल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग टू इन्वेस्टर एंड स्टेक होल्डर. It is primarily used to analyze the market trend and customer preference. So it is not related to, it is employed to allocate indirect cost to different product, process or department based on the activities that they incur those cost. ठीक है, not related to external, not related to method of tracking the performance. The right answer here will be option number C. Next one. Which costing system focuses on differentiating between fixed and variable cost and links profit to changes in volume? इनमें से कौन सा ऐसा कॉस्टिंग सिस्टम है जो कि डिफरेंशिएट करता है फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट में और प्रॉफिट को उससे लिंक करता है बाय चेंजिंग इन द वॉल्यूम? नाउ यहां पे दो क्वेश्चन बन सकते हैं. कॉस्टिंग सिस्टम विच डज नॉट डिफरेंशिएट्स and one which differentiates. तो अगर कोई डिफरेंशिएट नहीं करता, दैट इज एब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग. एब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग में वेरिएबल हो चाहे फिक्स कॉस्ट हो, दोनों पर यूनिट बेसिस पे ली जाती है. बट कॉस्टिंग सिस्टम जो कि डिफरेंशिएट करता है, दैट इज योर मार्जिनल कॉस्टिंग, जो कि डिफरेंशिएट करता है बिटवीन fixed cost and variable cost. As I told you, fixed cost remains constant with the volume of production. ठीक है, and variable cost changes with the level of production, with the volume or level of production. जितना ज्यादा प्रोडक्शन बढ़ेगा उतना ज्यादा हमारी वेरिएबल कॉस्ट बढ़ती जाएगी. Then, which statement correctly describes Section 80E of the Income Tax Act? It provides a deduction for health insurance premium. It offers a deduction for donation to charitable institution. It allows a deduction for interest on banks taken on loans taken for higher education. It grants a deduction for interest earned on saving account. What will be the right answer? So right answer is, ध्यान रख सकते हैं आप, E is education. E stands for education. So when E stands for education, correct, आप उसको रिलेट कर सकते हो इंटरेस्ट ऑन लोन. जो आप डिडक्शन देता है कि अगर आपने पढ़ने के लिए लोन लिया है तो उस लोन पे जो आप ब्याज पे कर रहे हो, करेक्ट, दैट कैन बी यूटिलाइज ओवर हियर. ठीक है, नेक्स्ट वन. Consider the following statement about the GST in India. Identify which statements are correct and which are incorrect. GST replaced various indirect taxes such as service tax, sales tax, VAT and central excise duty. It is a direct tax levied on the income or profit of individual and corporation. The implementation of GST from 1st July 2017 aimed to create a unified tax system and eliminate multiple indirect taxes. Under GST, octroi and surcharges on goods and services continue to be levied separately by state government.
GST simplified the tax structure by subsuming the interstate transportation levies. क्या होगा राइट आंसर? Now, GST has replaced various indirect taxes. That is correct. It is a direct tax? No, it is not a direct tax. तो देखो जहां पर भी बोला है स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, तो ये गलत हो गया. ठीक है. नाउ स्टेटमेंट 1 इज ऑल्सो करेक्ट, ये भी हो गया. वैसे तो आंसर देखो आप स्मार्टली ऐसे निकाल सकते हो. The implementation of GST, this is correct. Date is 1st July 2017. Under GST, octroi and surcharges on goods and services continue to be levied, which is wrong. And it is a simplified tax structure which has subsumed, subsuming का मतलब होता है अपने अंदर engulf कर लेना. So that is correct. Then, which type of contract involves an arrangement where the contractor includes a profit in its billing? Fixed price, cost plus time and material retention money. जहां पे फिक्स कॉस्ट जहां पे प्रॉफिट बिलिंग के अंदर इंक्लूडेड होता है वो होता है फिक्स प्राइस. कॉस्ट प्लस में क्या होता है? कॉस्ट प्लस प्रॉफिट परसेंटेज. तो हियर द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए. देन अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 and Ind AS 115, how should profit be recognized on an incomplete contract? Profit should be recognized only after the completion of the contract. Profit should be recognized proportionately during the duration of the contract. It should be recognized upfront, तो आप नहीं कर सकते हो. Correct. It should be recognized based on the contractor's discretion. No. It should be recognized proportionately. हमारा accounting standard 7 and AS 115 जो कि किससे डील करता है? कॉन्ट्रैक्ट से. करेक्ट. तो कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट, तो दैट सेज कि भाई आप जो प्रॉफिट है उसको रिकॉग्नाइज करोगे प्रोपोर्शन में एज द पेमेंट गोज ऑन. Next, evaluate the following statement and identify which are correct and which are incorrect in the context of direct and indirect taxes. Direct tax is imposed on income and profits, while indirect tax is levied on goods and services. Direct tax is directly paid to the government, whereas there is generally an intermediary for collecting indirect taxes from the end consumer. The burden of tax cannot be shifted in case of direct tax, while the burden can be shifted for indirect tax. The probability of tax evasion is lower in the case of indirect taxes. Statement 1, 2, 3 and 4 are correct, 4 is incorrect. Statement 2, 3 and 4 are correct, 1 is incorrect. Statement 1, 3 and 4 are correct, 2 is incorrect. तो पहले देख लेते हैं. डायरेक्ट टैक्स इंपोज हो रहा है इनकम एंड प्रॉफिट पे, विच इज करेक्ट. इनडायरेक्ट टैक्स गुड्स एंड सर्विसेज में, तो जहां पे बोला जा रहा है कि 1 इज इनकरेक्ट, ये तो गलत हो गया. ठीक है, ये आंसर गलत है. देन डायरेक्ट टैक्स इज डायरेक्टली पेड टू द गवर्नमेंट, whereas there is generally an intermediary for collecting indirect taxes from the end consumer. This is also correct. तो ये वाला स्टेटमेंट भी गलत हो गया. Now fourth, the probability of tax evasion is lower in the case of indirect taxes. That is also correct. तो ये वाला स्टेटमेंट भी करेक्ट हो गया. गलत हो गया, तो आंसर क्या होगा? D. All of the above, all the statements here are true with respect to PAN. ठीक है. Number 1, PAN stands for Permanent Account Number. It is a 10-digit numeric number issued by the Income Tax Department. It is unique to an India or other factors. What are the right options? Only 1, 2 and 3. Only 1, 2, 3 and 4. Only 1/3 and 4th. All of the above are correct. You have to tell me which among the following is the right answer. Okay, so I hope
आप आंसर्स चैट में दे सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं. ऑल्सो इफ यू आर न्यू ऑन ऑफिसर अड्डा 24/7, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल, प्रेस द बेल आइकन, सो दैट आपको जितने भी रीसेंट अपडेट हैं वो मिलते रहें. वंस यू सब्सक्राइब टू द चैनल, यू विल ऑल्सो गेट द प्ले लिस्ट फॉर ऑल द सेशंस दैट आर हैपनिंग. तो यहाँ पे ऐसा नहीं कि सिर्फ एएफएम का ही सेशन होता है. एएफएम के साथ साथ आपका पीपीबी, आरबीडब्ल्यूएम सबके सेशन फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं. सब्सक्राइब करते ही आपको प्लेलिस्ट का ऑप्शन मिल जाएगा एंड आप उस सारी प्लेलिस्ट में जितने भी पास्ट में भी सेशन हुए हैं उनको भी देख सकते हैं. चलिए, आई होप आपने ये सेशन शेयर कर दिया होगा. लेट्स डिस्कस. सो पहला आंसर दिया हुआ है, पहला ऑप्शन दिया है परमानेंट. पैन स्टैंड्स फॉर परमानेंट अकाउंट नंबर. Correct, which is correct. PAN stands for permanent account number. Then it is a 10-digit numeric number issued by the income tax department. So definitely it is issued by income tax department. Correct, ये income tax department के द्वारा ही issue किया जाता है. But the option being that it is a 10-digit numeric number is a problem. Why is it a problem? Because it is not only a numeric number, it is alphanumeric. अल्फा न्यूमेरिक का मतलब क्या होता है? विच इंक्लूड्स अल्फाबेट्स एज वेल एज नंबर्स. करेक्ट. तो अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल दूं, फॉर एग्जाम्पल 10 डिजिट्स है, 10 कैरेक्टर्स है ना. नाउ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जिसमें से 4 आपके नंबर्स होते हैं और 6 आपके अल्फाबेट्स होते हैं. दैट इज हाउ इट इज सीक्वेंस्ड. ठीक है. सो आई होप यहां तक सबको क्लैरिटी है. नाउ इट इज यूनिक टू एन इंडिविजुअल और एंटिटी and it is valid across the country. Now it is unique to an individual. Definitely all of us we have our own unique PAN number. हम लोगों के नाम मैच कर सकते हैं बट किसी से हमारा जो पैन नंबर है वो मैच नहीं कर सकता है ना. हम सबका जो पैन नंबर है दैट इज यूनिक, राइट, एंड इट विल नॉट मैच टू एनी अदर इंडिविजुअल. ठीक है. तो डेफिनेटली इट इज अ यूनिक नंबर एंड इट विल नॉट, इट कैन नॉट बी सेम, right, or it cannot match to any other person. Then PAN once allotted to individual or entities unaffected by change of name, address within or across state in India or other factors. That is also correct. Once it is allotted, it will not change things. It will remain same whether whether you change your address or anything, but this will remain same. So the answer would be that the second statement is wrong. So this option goes wrong. This option goes wrong. This option goes wrong. Right answer will be option number C. ठीक है. Then next one. Which of the following best describes a difference between fixed cost and variable cost in the context of costing for a producer? Fixed costs are only relevant for service providers while variable cost apply to product manufacturers. Fixed costs change directly with the level of production, whereas variable costs remain constant. Fixed cost remains constant regardless of the level of production, while variable cost changes with production level. Both fixed and variable costs are always expressed as percentage of revenue. क्या होगा राइट आंसर? Now here we are talking about fixed cost and variable cost. Correct. So here we'll be talking about fixed and variable cost. Correct.
चलिए स्टार्ट करें। नो पहला स्टेटमेंट कहता है फिक्स कॉस्ट आर ओनली रेलेवेंट फॉर सर्विस प्रोवाइडर व्हाइल वेरिएबल कॉस्ट अप्लाइड टू प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर। दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग. Fixed cost charged directly with the level of production, whereas variable cost remains constant. No. Fixed cost remain constant regardless of the level of production, while variable cost change with the production level. This is correct. Now let me explain you. Say fixed cost क्या होती है? जैसे मैं आपको बोलती हूँ, मैंने एक क्वांटिटी बनाई, एक पेन बनाया, ठीक है. मेरी जो वेरिएबल कॉस्ट है, वेरिएबल कॉस्ट होती क्या है? पहले तो वेरिएबल कॉस्ट में आएगा आपका रॉ मटेरियल, लेबर, एसेट्रा, ठीक है. अब एक पेन बनाने में मुझे 8 रुपए की प्लास्टिक लग रही है, 10 रुपए की चलो रॉ मटेरियल और लेबर लग रहा है, और मेरा रेंट जा रहा है इसके लिए 10,000 रुपए फैक्ट्री का. मैं अगर 100 पेन बनाती हूं तो मेरी वेरिएबल कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 1000, बट मेरा रेंट कितना रहेगा? 10,000. लेट्स से मैं 1000 क्वांटिटी बनाती हूँ, ठीक है. मेरी वेरिएबल कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 10,000. मेरा रेंट तो भी कितना सेम रहेगा? 10,000. मैं 10,000 क्वांटिटी बनाती हूँ, मेरी वेरिएबल कॉस्ट हो जाएगी 1,00,000, बट मेरा रेंट तब भी कितना रहेगा? 10,000. तो फिक्स कॉस्ट जो है वो कांस्टेंट रहती है विद द लेवल ऑफ प्रोडक्शन, वाइल वेरिएबल कॉस्ट जो है वो चेंज करती है विद प्रोडक्शन लेवल. नेक्स्ट वन, what is the primary difference between service costing and unit or single output costing? What will be the right answer? Also share the link of the session among your friends and colleagues. जल्दी से बताइए क्या होगा राइट आंसर. ये दोनों कॉस्टिंग के मेथड्स हैं, जिसके थ्रू हम प्रोडक्ट या सर्विसेज की कॉस्ट निकालते हैं, कंप्यूटेशन करते हैं. नाउ चलिए, सर्विस कॉस्टिंग किससे रिलेटेड है? सर्विस कॉस्टिंग इज रिलेटेड विथ कंप्यूटेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ सर्विस. ठीक है, जो सर्विसेज हम प्रोवाइड करते हैं, है ना, उसकी कॉस्ट कंप्यूट करने के लिए जो मेथड हम लोग यूज करते हैं, राइट, वी कॉल इट एज सर्विस कॉस्टिंग. यूनिट और सिंगल आउटपुट कॉस्टिंग किससे रिलेटेड है? अच्छा, इससे पहले जहां जहां पे आपको लिखा है मैन्युफैक्चरिंग, वो तो गलत हो जाएगा. करेक्ट. नाउ सिंगल आउटपुट कॉस्टिंग इज यूज्ड वेयर इन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर. इसको हम लोग कहां यूज करते हैं? मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में. ठीक है, तो राइट आंसर ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी. ठीक है, नेक्स्ट वन,
What role does activity based costing primarily play in achieving the objective of cost accounting? Activity based costing is also a method of costing. ठीक है? In order to achieve the objective of cost accounting, how does or what role will ABC play? What role does activity based costing primarily play in achieving the objective of cost accounting? Now see, ABC costing is a method जहां पे हम cost का जो allocation करते हैं, expenses का जो allocation करते हैं, that is done on the basis of activities. ठीक है, हम क्या करते हैं, एक्टिविटीज के बेसिस पे करते हैं. ठीक है, तो इट इज यूज्ड फॉर एक्सटर्नल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग टू इन्वेस्टर एंड स्टेक होल्डर. It is primarily used to analyze the market trend and customer preference. So it is not related to market. It is employed to allocate indirect cost to different product, process or department based on the activities that they incur those cost. ठीक है, not related to external, not related to method of tracking the performance. The right answer here will be option number C. Next one. Which costing system focuses on differentiating between fixed and variable cost and links profit to changes in volume? इनमें से कौन सा ऐसा कॉस्टिंग सिस्टम है जो कि डिफरेंशिएट करता है फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट में और प्रॉफिट को उससे लिंक करता है बाय चेंजिंग इन द वॉल्यूम? नाउ यहां पे दो क्वेश्चन बन सकते हैं. कॉस्टिंग सिस्टम विच डज नॉट डिफरेंशिएट्स and one which differentiates. तो अगर कोई डिफरेंशिएट नहीं करता, दैट इज एब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग. एब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग में वेरिएबल हो चाहे फिक्स कॉस्ट हो, दोनों पर यूनिट बेसिस पे ली जाती है. बट कॉस्टिंग सिस्टम जो कि डिफरेंशिएट करता है, दैट इज योर मार्जिनल कॉस्टिंग, जो कि डिफरेंशिएट करता है बिटवीन fixed cost and variable cost. As I told you, fixed cost remains constant with the volume of production. ठीक है, and variable cost changes with the level of production, with the volume or level of production. जितना ज्यादा प्रोडक्शन बढ़ेगा उतना ज्यादा हमारी वेरिएबल कॉस्ट बढ़ती जाएगी. Then, which statement correctly describes section 80E of the Income Tax Act? It provides a deduction for health insurance premium. It offers a deduction for donation to charitable institution. It allows a deduction for interest on banks taken on loans taken for higher education. It grants a deduction for interest earned on saving account. What will be the right answer? So right answer is, ध्यान रख सकते हैं आप, E is education. E stands for education. So when E stands for education, करेक्ट, आप उसको रिलेट कर सकते हो इंटरेस्ट ऑन लोन. जो आप डिडक्शन देता है कि अगर आपने पढ़ने के लिए लोन लिया है तो उस लोन पे जो आप ब्याज पे कर रहे हो, करेक्ट, दैट कैन बी यूटिलाइज ओवर हियर. ठीक है, नेक्स्ट वन. Consider the following statement about the GST in India. Identify which statements are correct and which are incorrect. GST replaced various indirect taxes such as service tax, sales tax, VAT and central excise duty. It is a direct tax levied on the income or profit of individual and corporation. The implementation of GST from 1st July 2017 aimed to create a unified tax system and eliminate multiple indirect taxes. Under GST, octroi and surcharges on goods and services continue to be levied separately by state government. GST simplified the tax structure by subsuming the interstate transportation levies. क्या होगा राइट आंसर?
Now, GST has replaced various indirect taxes. That is correct. It is a direct tax? No, it is not a direct tax. तो देखो जहां पर भी बोला है स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, तो ये गलत हो गया, ठीक है. नाउ स्टेटमेंट 1 इज ऑल्सो करेक्ट, ये भी हो गया. वैसे तो आंसर देखो आप स्मार्टली ऐसे निकाल सकते हो. द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी, दिस इज करेक्ट. डेट इज 1 जुलाई 2017. Under GST, octroi and surcharges on goods and services continue to be levied, which is wrong, and it is a simplified tax structure which has subsuming का मतलब होता है अपने अंदर engulf कर लेना, तो that is correct. Then, which type of contract involves an arrangement where the contractor includes a profit in its billing? Fixed price, cost plus time and material, retention money. जहां पे फिक्स कॉस्ट जहां पे प्रॉफिट बिलिंग के अंदर ही इंक्लूडेड होता है वो होता है फिक्स प्राइस. कॉस्ट प्लस में क्या होता है? कॉस्ट प्लस प्रॉफिट परसेंटेज. तो हियर द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए. देन, according to accounting standard 7 and Ind AS 115, how should profit be recognized on an incomplete contract? Profit should be recognized only after the completion of the contract. Profit should be recognized proportionately during the duration of the contract. It should be recognized upfront, तो आप नहीं कर सकते हो. Correct. It should be recognized based on the contractor's discretion. No. It should be recognized proportionately. हमारा accounting standard 7 एंड AS 115 जो कि किससे डील करता है? कॉन्ट्रैक्ट से. करेक्ट. तो कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट, तो दैट सेज कि भाई आप जो प्रॉफिट है उसको रिकॉग्नाइज करोगे प्रोपोर्शन में एज द पेमेंट गोज ऑन. नेक्स्ट, evaluate the following statement and identify which are correct and which are incorrect in the context of direct and indirect taxes. Direct tax is imposed on income and profits, while indirect tax is levied on goods and services. Direct tax is directly paid to the government, whereas there is generally an intermediary for collecting indirect taxes from the end consumer. The burden of tax cannot be shifted in case of direct tax, while the burden can be shifted for indirect tax. The probability of tax evasion is lower in the case of indirect taxes. Statement 1, 2, 3 and 4 are correct, 4 is incorrect. Statement 2, 3 and 4 are correct, 1 is incorrect. Statement 1, 3 and 4 are correct, 2 is incorrect. तो पहले देख लेते हैं. डायरेक्ट टैक्स इंपोज हो रहा है इनकम एंड प्रॉफिट पे, विच इज करेक्ट. इनडायरेक्ट टैक्स गुड्स एंड सर्विसेज में, तो जहां पे बोला जा रहा है कि 1 इज इनकरेक्ट, ये तो गलत हो गया, ठीक है, ये आंसर गलत है. देन, डायरेक्ट टैक्स इज डायरेक्टली पेड टू द गवर्नमेंट, वेयरएज देयर इज जनरली एन इंटरमीडियरी फॉर कलेक्टिंग इनडायरेक्ट टैक्सेस फ्रॉम द एंड कंज्यूमर. दिस इज ऑल्सो करेक्ट, तो ये वाला स्टेटमेंट भी गलत हो गया. नाउ फोर्थ, द प्रोबेबिलिटी ऑफ टैक्स इवेजन इज लोअर इन द केस ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस. दैट इज ऑल्सो करेक्ट, तो ये वाला स्टेटमेंट भी करेक्ट हो गया, गलत हो गया. तो आंसर क्या होगा? डी, all of the above. All the statements here are threshold limit. Number 2, the provision of TDS apply to several payments like salary, interest, commission, brokerage, dividend payments, professional fees, royalty, etc. Then the person or company that deducts the TDS is called deductor, and the company or person receiving the payment is called as deductee. Then it is the deductor's responsibility to deduct TDS before making the payment and deposit the same with the government. TDS is required to be deducted irrespective of the mode of payment of cash, check or credit, and is linked to the TAN of deductor and PAN of deductee. आपको बताना है कि कौन सी statement correct है. So first option is only, fourth option is correct. D is all are correct. क्या होगा राइट आंसर? नाउ टीडीएस एक्चुअली होता क्या है? टीडीएस का फुल फॉर्म होता है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स. ये रिलेटेड किससे होता है? सी, जब भी ये एक प्रॉब्लम आता था हमारी इकोनॉमी में टैक्स कलेक्शन के एरिया में कि जिसको इनकम मिल रही है ना, वो मल्टीपल लोग हैं, उनको ट्रेस करना बहुत मुश्किल हो रहा है. आप किसी के ऊपर पेनल्टी तो तब लगाओगे ना, या आइडेंटिफाई तो तब करोगे ना किसने टैक्स कम भरा या नहीं भरा, जब वो कोई अपनी इंफॉर्मेशन आपको सप्लाई करे.
इसके लिए इस प्रॉब्लम को डील करने के लिए हमारी टैक्सेशन एक्ट में डिडक्टी की जगह डिडक्टर को टैक्सेबल बनाया जाता है, यानी मेरी सैलरी पर या मेरी इनकम पर टैक्स डिडक्ट करने की जिम्मेदारी मेरे एम्प्लॉयर के ऊपर है, ना कि मेरे ऊपर है. सो नाउ व्हेन माय रिस्पॉन्सिबिलिटी या मेरा डिडक्शन इज इन द हैंड्स ऑफ माय एम्प्लॉयर, उनके ऊपर एक्शन होगा तो वो क्या करेंगे, ही विल बी वेरी पर्टिकुलर, द ऑर्गेनाइजेशन विल बी वेरी पर्टिकुलर विद रिस्पेक्ट टू द डिडक्शन ऑफ टैक्स इन एडवांस. करेक्ट. तो ये बहुत ही स्मार्ट मूव था गवर्नमेंट का, जहां पे उन्होंने डिडक्टी की जगह डिडक्टर, एंड हेंस हमारा जो टैक्सेशन था वो काफी स्ट्रीमलाइन हो पाया. ठीक है. सो TDS इज बेसिकली डिडक्शन ऑफ टैक्सेस इन एडवांस. करेक्ट. एडवांस यानी कि आपकी ड्यू डेट तो 31 मार्च तक है, बट एक जनरल तरीके से आपका टैक्स पहले ही डिडक्ट हो जाता है. वो पर्सन हो या कंपनी हो, दे विल बी कॉल्ड एज डिडक्टर. जो जिसकी इनकम में से डिडक्ट हो रहा है, दैट पर्सन इज कॉल्ड एज डिडक्टी. ठीक है. तो अगर आप ये सारे ऑप्शंस को देखें तो यहाँ पे राइट आंसर क्या है, ऑल द अबव आर करेक्ट, है ना, सारे ही सही है. सो फर्स्ट क्वेश्चन, ऑल द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. ठीक है. नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 2, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट. आपको क्या निकालना है, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकालना है. टोटल फिक्स कॉस्ट दी है, सेल्स प्राइस पर बल्ब दिया है, कॉस्ट ऑफ ऑल डायरेक्ट कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट आपको दिया है. आपको निकालना है कंट्रीब्यूशन पर यूनिट. ये क्वेश्चन आपका मई 2023 में पूछा गया था मार्जिनल कॉस्टिंग से. नाउ मार्जिनल कॉस्टिंग, ये जो क्वेश्चन है, दिस इज फ्रॉम द चैप्टर मार्जिनल कॉस्टिंग. ठीक है. मार्जिनल कॉस्टिंग इज ऑल अबाउट कॉस्ट. यहां पे सेल्स इंपॉर्टेंट नहीं होती, यहां पे इंपॉर्टेंट क्या होती है, आपकी कॉस्ट, विच इज वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स कॉस्ट. सो इट इज ऑल अबाउट दी कॉस्ट. ठीक है. नाउ मार्जिनल कॉस्टिंग में अगर हमें या जनरली हमें अगर कंट्रीब्यूशन निकालना हो, कंट्रीब्यूशन बेसिकली आप ऐसे समझ लो बचत है जिससे आप अपनी फिक्स कॉस्ट निकालते हो. ये सेविंग है जिसमें से हम किसको माइनस करते हैं, अपनी फिक्स कॉस्ट को प्रॉफिट लाने के लिए. तो कंट्रीब्यूशन हमारी क्या है, सेविंग्स है. कंपनी कितनी बचत कर रही है, राइट, दैट इज योर कंट्रीब्यूशन. तो आप इसको हमेशा कैसे समझेंगे, ये बचत है. बचत कैसे निकालेंगे, सेल्स आप कितने की कर रहे हो, 60 रुपए की, उस पर कॉस्ट कितनी खर्च कर रहे हो, 40 रुपए की, यानी कितने रुपए बच रहे हैं, 20 रुपए बच रहे हैं. करेक्ट. तो दैट इज योर कंट्रीब्यूशन. फॉर्मूला क्या हो गया, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट. अब ये बचत का मतलब क्या है, हर एक ऑर्गेनाइजेशन में दो तरीके की कॉस्ट होती है, एक होती है वेरिएबल, एक होती है फिक्स. वेरिएबल कॉस्ट का मतलब क्या होता है, वो कॉस्ट जो कि प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंडेंट है, यानी जितनी ज्यादा यूनिट बनेंगी उतना ज्यादा आपकी वेरिएबल कॉस्ट बढ़ेगी. फॉर एग्जांपल अगर मैं इस मार्कर की बात करूं तो ये मार्कर में वेरिएबल कॉस्ट क्या होगी, प्लास्टिक. जितने ज्यादा मार्कर बनेंगे उतनी ज्यादा प्लास्टिक लगेगी. तो दैट इज योर वेरिएबल कॉस्ट विच वेरीज, जो चेंज होती रहती है, किससे, यूनिट ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर डिपेंडेंट होती है. ठीक है. फिर दूसरी आती है फिक्स कॉस्ट, जहां पे कोई चेंज नहीं होता विद लेवल ऑफ प्रोडक्शन. अब इसको मैं बना रही हूं एक स्पेस में, एक मशीन में या एक फैक्ट्री में जिसका रेंट है 10,000 रुपए. अब मैं इसकी 10,000 यूनिट बनाऊं, मैं इसकी 1,000 यूनिट बनाऊं, मैं इसकी 20,000 यूनिट बनाऊं, मुझे 10,000 का रेंट देना ही है हर महीने. दैट इज फिक्स कॉस्ट. तो हमारी उसको कवर करने के लिए हमें निकालना होता है कॉन्ट्रीब्यूशन. करेक्ट. तो हम हमारी फिक्स कॉस्ट को कवर कर पा रहे हैं या नहीं, हमें प्रॉफिट हो रहा है या नहीं, वो कैसे निकाला जाता है, कंट्रीब्यूशन के थ्रू. तो सबसे पहले हमें चाहिए कंट्रीब्यूशन, जो कि बताता है कि सेल में से वेरिएबल कॉस्ट घटाने के बाद हमारे पास कितना पैसा बचा, जिससे हम हमारी फिक्स कॉस्ट को माइनस करें और ये देखें कि हमें कितना प्रॉफिट हो रहा है या कितना लॉस. ठीक है. सो कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला क्या है, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट. नेक्स्ट, कैलकुलेट द बीईपी इन यूनिट्स. बीईपी का मतलब क्या होता है, रिलेटेड क्वेश्चन है. ब्रेक इवन पॉइंट, आपको क्या निकालना है, बीईपी, दैट इज ब्रेक इवन पॉइंट, यानी एक ऐसा पॉइंट जहां पे ऑर्गेनाइजेशन इवनली ब्रेक कर रही है. अगर इसके इधर जाएगी तो लॉस है, इसके आगे जाएगी तो प्रॉफिट है. तो ये जो पॉइंट है, दिस इज कॉल्ड एज ब्रेक इवन पॉइंट, जहां पे हम इवनली ब्रेक कर रहे हैं इस पॉइंट को. आगे अगर जाती है तो प्रॉफिट है, पीछे अगर जाती है तो लॉस है. अब ब्रेक इवन को निकालने का फॉर्मूला क्या होता है,
ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला क्या होगा, आप सोचो, आपको क्या निकालना है, यानी मुझे 10,000 यूनिट बनानी होंगी। अब इसको आप ऐसे देखो, अगर मैं 10,000 यूनिट को 20 से मल्टीप्लाई करूं तो मेरे कितने रुपए आएंगे, 2 लाख रुपए का कंट्रीब्यूशन आ गया। मेरी फिक्स कॉस्ट कितनी है, 2 लाख। तो ना मुझे प्रॉफिट हो रहा है ना मुझे लॉस। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट, जहां पे हम ऐसे पॉइंट पे अपने ऑर्गेनाइजेशन में पहुंच गए हैं जहां पे हमें ना प्रॉफिट होगा ना लॉस, लेकिन अगर एक कम यूनिट हुई तो लॉस हो जाएगा, एक ज्यादा यूनिट हुई तो प्रॉफिट हो जाएगा। यानी ऑर्गेनाइजेशन का बीईपी पॉइंट कितना है, 10,000 यूनिट। 10,000 की सेल नहीं, 10,000 यूनिट बेचने पर ऑर्गेनाइजेशन उस लेवल पे पहुंच जाएगी जहां उन्हें प्रॉफिट और लॉस की चिंता नहीं होगी, बिकॉज ना ही प्रॉफिट होगा ना ही लॉस होगा। ठीक है, नेक्स्ट वन, अभी आपने यूनिट्स में निकाला था ना, ब्रेक इवन पॉइंट आपको निकालना है अमाउंट में। ठीक है, तो आप कैसे निकालोगे, फॉर्मूला क्या होगा, सेम फॉर्मूला है, टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इनटू सेलिंग प्राइस, जो आपका अप्लाई कर दो। ये अभी हमने कितना निकाला था, 10,000 यूनिट, सेलिंग प्राइस कितना है 60, तो हमारा कितना हो जाएगा 6 लाख। यानी हमें कितने की सेल करनी होगी, 6 लाख की सेल करनी होगी बीईपी पे पहुंचने के लिए। अब इसको एक बार कैलकुलेट पीवी रेशो, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट पीवी रेशो। पीवी रेशो का मतलब क्या है, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो। अब प्रॉफिट का मतलब यहां पे क्या होता है, बचत यानी सेविंग्स, और सेविंग्स हम किसे बोलते थे, कंट्रीब्यूशन को। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100। कंट्रीब्यूशन हमारा कितना था, 20 पर यूनिट, सेलिंग प्राइस कितना है 60 इनटू 100, कितना आ रहा है पीवी रेशो, जल्दी से कैलकुलेट करें। (33.33%) पीवी रेशो आ रहा है हमारा 33.33%। यानी यहां पे हमारे मेन फॉर्मूलाइज क्या क्या हो गए, अगर आप कॉपी और पेन रख के बैठे हैं तो फटाफट लिखते जाइए, ये सारे आपके इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं। कंट्रीब्यूशन का मतलब है सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, बीपी इन यूनिट्स कैसे निकालेंगे, टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। यहीं पे अगर बीईपी अमाउंट में आ जाए यानी रुपीज में आ जाए तो सेम फॉर्मूले में आप क्या करोगे, टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इनटू सेलिंग प्राइस। एंड पीवी रेशो का फॉर्मूला क्या है, पीवी रेशो का फॉर्मूला क्या है, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100। ये सारे फॉर्मूलाज काफी 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 इंपॉर्टेंट है, आप चाहे तो इन्हें एक बार लिख जरूर लें, या चाहे तो स्क्रीनशॉट ले ले, मैं साइड हो चुकी हूं। ठीक है, चलते हैं आगे, नेक्स्ट वन। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। In absorption costing, only the variable costs are taken as the cost of unit of the product. Only the fixed costs are taken as the cost of a unit of the product. Only the variable cost and the variable overhead costs are taken as the cost of unit of the product. Both the variable cost and the proportionate fixed costs are taken as the cost of a unit of the product. Absorption costing से related इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? अगर आप इन क्वेश्चंस को सेव करना चाहते हैं तो लाइक बटन पे जरूर क्लिक कर दीजिएगा, so that these questions stay with you, they remain with you. ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ऐसे क्वेश्चंस है जो पूछे गए हैं या पूछे जा सकते हैं, तो जरूर लाइक बटन पे क्लिक करके इन क्वेश्चंस को सेव कर लीजिएगा। नाउ अगर मैं एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के बारे में बात करूं तो ये एक तरीके की कॉस्टिंग मेथड है। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग इज अ मेथड। अभी क्या होता है, जितने भी आप सारे और भी मेथड्स पढ़ोगे वहां पर आपकी जो वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट है उसको डिफरेंटली रखा जाता है, फिक्स कॉस्ट को प्रोपोर्शन में नहीं बांटा जाता।
यानी उसको डिवाइड नहीं किया जाता नंबर ऑफ यूनिट से, कभी भी नहीं डिवाइड किया जाता। बस सिर्फ और सिर्फ एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग एक ऐसी कॉस्टिंग है जहां पे वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट को हम प्रोपोर्शनेट करते हैं, ठीक है, किस रिस्पेक्ट में, यूनिट्स प्रोड्यूस के बेसिस पे। यानी यहां पे फिक्स कॉस्ट को एज अ टोटल अमाउंट नहीं लिया जाता, रादर इसका भी पर यूनिट कॉस्ट निकाली जाती है। सो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग और सारे डिफरेंट मेथड्स में सिर्फ और डिफरेंस यही है कि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में फिक्स कॉस्ट को भी हम पर यूनिट बेसिस पे लेते हैं, वेरिएबल को तो पर यूनिट पे लेते ही लेते हैं, बट इसको भी हम लोग किस बेसिस पे लेते हैं, पर यूनिट बेसिस पे लेते हैं। तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में बोथ द वेरिएबल कॉस्ट एंड द फिक्स कॉस्ट आर अ पोर्शन और and the proportionate fixed cost are taken as the cost of a unit of the product। यानी कि हम चाहे फिक्स कॉस्ट हो चाहे वेरिएबल कॉस्ट हो, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में हम दोनों को पर यूनिट के बेसिस पे कंसिडर करते हैं। किसी और मेथड में फिक्स कॉस्ट के साथ ऐसा नहीं होता, दैट इज व्हाई क्वेश्चन एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग पे आता है, ठीक है। Next one, dashes the gap between the estimated or budgeted level of operations and the break-even level that indicates the cushion available to the business for sustaining its operation in times of adversity. Contribution margin of safety, PV ratio, BEP. दिए गए ऑप्शन में से क्या रिप्रेजेंट करता है गैप, यानी डिफरेंस बिटवीन योर बजटेड सेल एंड एक्चुअल सेल। एक्चुअल सेल और बजटेड सेल के बीच में इनमें से कौन सा डिफरेंस रिप्रेजेंट करता है, दैट इज योर मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी वो गैप है जो हमें बताता है कि हम कितना सेफ है, राइट। हमारी जो बजटेड सेल थी और हमारी जो एक्चुअल सेल हुई है उसमें कितना गैप है, और वही हमारी सेफ्टी है। जितना एक्चुअल सेल ज्यादा होगी एज कंपेयर टू बजटेड सेल तो हमें तो बेहतर ही रहेगा ना, वी विल ऑलवेज बी सेफ। तो दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय योर मार्जिन ऑफ सेफ्टी, क्योंकि वो क्या दिखाता है कि हमारी जो बजटेड सेल थी या फिर बीईपी था, हम उससे अगर ऊपर ही जा रहे हैं, आगे जा रहे हैं, तो दैट इज अ गुड थिंग, ठीक है। Then, which among the following does not match the concept of marginal costing? It is the cost of producing one additional unit of product or service. It is one of the costing technique used by accountant to aid management decisions. In this technique of costing, only variable costs are charged to operation, process or product, leaving all indirect costs to be written off against profit. Sales occupies a very important role in marginal costing. आपको बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट मैच नहीं करती। Now, marginal costing is basically a method of costing जहां पे हम वन एडिशनल यूनिट का प्राइस निकाल लेते हैं कि भाई एक अगर यूनिट एडिशनल बना रहे हैं तो उससे हमारे प्रॉफिट या लॉस पर क्या इंपैक्ट या प्रभाव पड़ेगा। तो मार्जिनल कॉस्टिंग उस एरिया में यूज की जाती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट अगर आप लास्ट वाला देखो, ये सारे पॉइंट गलत है, सारे पॉइंट सही है, ये डिसीजन मेकिंग में भी काम करती है। यहाँ पर हम वेरिएबल कॉस्ट को ही कंसिडर करते हैं विद रिस्पेक्ट टू पर यूनिट चार्ज, लेकिन यहाँ दिया है सेल्स ऑक्यूपाइज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन मार्जिनल कॉस्टिंग। अभी स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि सेल नहीं है, मार्जिनल कॉस्टिंग में जो चीज इंपॉर्टेंट प्लेस होल्ड करती है वो है कॉस्ट, और हमारी दो कॉस्ट होती है, फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट। सिर्फ और सिर्फ मार्जिनल कॉस्टिंग एक ऐसी कॉस्टिंग है जहां पे कॉस्ट के ऊपर काफी इंपॉर्टेंस दी जाती है, ना कि सेल्स के ऊपर। ठीक है, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी गलत है, यहाँ पे सेल्स वर्ड गलत है, द वर्ड शुड बी कॉस्ट। कौन सी कॉस्ट? फिक्स कॉस्ट एंड योर वेरिएबल कॉस्ट। Then all firms and LLP are currently taxed at a rate of 20%, 25%, 30%, 26.55%। जितनी भी फर्म्स और LLP है, ठीक है, फर्म्स का मतलब क्या हुआ? पार्टनरशिप फर्म। LLP का मतलब क्या है? लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। ठीक है, फर्म्स का मतलब क्या है? पार्टनरशिप फर्म्स, जहां पार्टनर्स होते हैं। ठीक है, LLP इज लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। ठीक है, ये किस रेट पे टैक्स किए जाते हैं? सो दे आर टैक्स एट द फ्लैट रेट ऑफ 30%। Then match the following column with the column 1 with item in column number 2। ये डिडक्शंस दी हैं, आपको मैच करनी है। सेक्शन 80D
deduction in case of person with disability. 80G is deduction in respect of donation. 80U deduction in respect of interest on loan for higher education. 80E deduction in respect of health insurance premium. Now अगर हम 80D के बारे में बात करें, 80D किससे रिलेटेड है? अगेन एग्जाम का क्वेश्चन है जो कि पूछा गया था 2023 में, ठीक है, मई 2023 का क्वेश्चन है। 80D रिलेटेड है हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम से, ठीक है। देन 80E, E है ना, E इज रिलेटेड विद एजुकेशन। अब हमारे दो ऑप्शन तो आ गए, A का फोर्थ है, तो A का फोर्थ हो गया और D का थर्ड है, तो आंसर तो हमारा ऑप्शन डी आ गया। बट एक बार समझ लेते हैं। नाउ बी दिया है 80G। 80G किससे रिलेटेड? एक मेजर क्वेश्चन है, उससे रिलेटेड आपको 5 क्वेश्चन दिए हैं। जैसे पहले स्कूल के टाइम पर या फिर पीओ या क्लर्क के लेवल के टाइम पर आपने पैसेज पढ़ा होगा, पैसेज से रिलेटेड या कॉम्प्रिहेंशन होता था, जहां से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते थे। ये उसी तरीके का एक क्वेश्चन होता है। नाउ इसमें 4 क्वेश्चन भी आ सकते हैं, 5 क्वेश्चन भी आ सकते हैं। मैंने आपकी प्रैक्टिस के लिए यहाँ पे 7 क्वेश्चंस को रखा है, तो आइडियली एग्जाम में आपके 4 से 5 क्वेश्चन की रेंज होगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन में सबसे पहले आपको बोला है कैलकुलेट करना है करंट रेशियो विद द गिवन इंफॉर्मेशन। अब यहाँ पे आपको करंट लायबिलिटीज दी हुई है, करंट एसेट दिया हुआ है, आपको बताना है करंट रेशियो। ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन दिया हुआ है, क्योंकि करंट रेशियो का हमें फॉर्मूला पता है, इट इज करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटीज। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है? करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। करंट एसेट हमें यहाँ पे दिया हुआ है 370, तो हमें कुछ मेहनत नहीं करनी है। करंट लायबिलिटीज हमें दी हुई है 350। हम इन दोनों को डिवाइड कर देंगे और हमारा आंसर तुरंत ही आ जाएगा। कितना है? तो 370 को मैंने 350 से डिवाइड करा, मेरा आंसर आया 1.06:1। तो ये आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ये तो इजी था। नाउ करंट एसेट क्या होते हैं? जिनको विद इन 12 मंथ्स हम इन नीड कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। एंड करंट लायबिलिटीज क्या है? जहां पे हमें विद इन 12 मंथ्स में अपनी ऑब्लिगेशन को पे करना होता है। ठीक है, और इससे बन जाता है करंट रेशियो। हमें ये बताता है कि 12 महीने में अगर हमें कैश की जरूरत पड़े तो हमारा सॉल्वेंसी रेशियो क्या है, हमारा स्टेटस क्या है, लेकिन शॉर्ट टर्म का। करंट रेशियो शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो के कैटेगरी में आता है। इसका एक और नाम लिक्विडिटी रेशियो भी है, यानी इसके हेड का नाम लिक्विडिटी रेशियो भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट दी वर्किंग कैपिटल। आपको क्या निकालना है? वर्किंग कैपिटल को निकालना है इस क्वेश्चन में। ना वर्किंग कैपिटल क्या होती है? डे टू डे ऑपरेशंस के लिए ठीक है, डे टू डे ऑपरेशंस के लिए हमें फंड की जरूरत होती है। ना सी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के जो फाइनेंस मैनेजर होते हैं, राइट, वो कौन होते हैं? जो कि ये देखते हैं कि भाई पैसा कैसे अरेंज किया जाएगा। इनका काम होता है कि ये लॉन्ग टर्म एज वेल एज शॉर्ट टर्म कैपिटल को अरेंज करके रखें। लॉन्ग टर्म कैपिटल हमें चाहिए होती है असेट परचेज करने के लिए, करेक्ट, और शॉर्ट टर्म कैपिटल हमें चाहिए होती है डे टू डे ऑपरेशन के लिए। अब ये डे टू डे ऑपरेशन होता क्या है? जैसे परचेज ऑफ रॉ मटेरियल हो गया, वेजेस को पे, मतलब लेबर को पे करने के लिए वेजेस का अमाउंट हो गया, या फिर अगर आप फिनिश गुड्स को स्टोरेज में रख रहे हैं तो उसकी कॉस्ट हो गई। ऐसे बहुत सारे खर्चे होते हैं जो हमें रेगुलर बेसिस पे पे करने होते हैं, या फिर हमें उसके लिए पैसा चाहिए होता है, तो वो शॉर्ट टर्म कैपिटल से हम निकाल लेते हैं। अब शॉर्ट टर्म कैपिटल हमें इस पर्पस के लिए चाहिए होती है। ना वर्किंग कैपिटल को हम एक और नाम देते हैं, दैट इज नेट वर्किंग कैपिटल। ठीक है, दो नाम होते हैं इसके। फॉर्मूला क्या होता है? करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज। नाउ कैसे हम बोल रहे हैं डे टू डे कैपिटल है? बिकॉज करंट एसेट से हमें पैसा मिलेगा, करंट लायबिलिटीज में हमें ऑब्लिगेशन पे करनी होगी, बाकी जो बचा हम उसको यूज कर सकते हैं फॉर आवर डे टू डे एक्सपेंसेस, विच इज 20 हो गई हो। नाउ दिस इज क्वाइट पॉसिबल कि ये सफिशिएंट फंड्स ना हो, तो उस केस में हमें हमारी वर्किंग कैपिटल नीड्स को फाइनेंस करना होता है, राइट, विच इज कॉल्ड एज वर्किंग कैपिटल फाइनेंस। और उसके ऊपर कि आपको कितना फाइनेंस मिल सकता है, काफी सारी कमिटीज फॉर्म हुई, काफी सारी कमिटीज ने अपने अपने मेथड्स दिए। उसमें से ये एक मेथड है जिसको हम बोलते हैं टंडन कमेटी की रिकमेंडेशंस। टंडन कमेटी ने हमें 3 मेथड्स के बारे में बताया, मेथड 1, मेथड 2 एंड मेथड 3। मेथड 3 एक्सेप्ट नहीं करा गया आरबीआई के द्वारा, सो वी फॉलो मेथड 1 एंड मेथड 2। चलिए नाउ
फाइंड आउट वर्किंग कैपिटल गैप। आपको क्या बताना है? आपको बताना है आपको बताना है वर्किंग कैपिटल गैप क्या है। ना वर्किंग कैपिटल जो है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है। एक होता है आपका टोटल करंट एसेट, दूसरा आपका होता है करंट, 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है। ग्रॉस वर्किंग कैपिटल, ठीक है, नेट वर्किंग कैपिटल या फिर वर्किंग कैपिटल, एंड थर्ड वन वर्किंग कैपिटल गैप। ठीक है, एज इट सेज ग्रॉस वर्किंग कैपिटल टोटल होता है करंट एसेट का। ठीक है, तो अगर मैं इस क्वेश्चन में बोलूं तो यहाँ पे ग्रॉस वर्किंग कैपिटल कितनी हो जाएगी? 370। नेट वर्किंग कैपिटल होता है करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी विच वाज 20, है ना, 370 माइनस 350। वर्किंग कैपिटल गैप क्या होता है? वर्किंग कैपिटल गैप इज बेसिकली करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज, और इसमें हम एक्सक्लूड कर देते हैं यानी हटा देते हैं बैंक फाइनेंस को। ठीक है, उसे हम एक्सक्लूड कर देते हैं। नाउ एज पर दिस फॉर्मूला क्या हो गया? करंट एसेट है आपका 370, ठीक है, करंट लायबिलिटी है आपकी 350 और बैंक का फाइनेंस आपको दिया है 200, यानी हमारी करंट लायबिलिटीज कितनी बची बैंक फाइनेंस को हटा के? 150, यानी हमारा यहां पर वर्किंग कैपिटल गैप आ गया 220। ठीक है, आई होप यहां तक क्लियर है। आप चैट में मुझे इससे रिलेटेड आंसर्स दे सकते हैं और जल्दी जल्दी दे सकते हैं सो दैट आई कैन नो आपको कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है नहीं। यहाँ तक मुझे बताते जाइए क्या आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर है, बिकॉज आज इस सेशन के बाद आपके 5 मार्क्स मैं इंश्योर करने वाली हूँ एग्जाम में। ठीक है, नेक्स्ट वन। तो मैंने आपको बताया था कि भाई टंडन कमेटी के बारे में, जिन्होंने बताया कि कैसे हम वर्किंग कैपिटल को फाइनेंस कर सकते हैं, अपनी वर्किंग कैपिटल नीड को फुलफिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला मेथड जो है उसके अकॉर्डिंग हमें बताना है कि भाई कितना बैंक फाइनेंस मिल सकता है। सो व्हाट इज द मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस एज पर टंडन कमेटी। अब इनका कहना क्या है कि भाई हर बैंकर या हर एक बैंक एज्यूम करता है कि जो भी वर्किंग कैपिटल नीड है, राइट, आपकी जितनी भी जरूरत है, ठीक है, लेट्स से आपकी जरूरत है 100 रुपए की, है ना, आपको 100 रुपीज चाहिए, इसमें से कुछ परसेंटेज आपको खुद अरेंज करना पड़ेगा, कुछ अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल आपको खुद से अरेंज करना पड़ेगा, जिसे हम बोलते हैं नेट वर्किंग कैपिटल। करेक्ट। अब आप मुझे बताते जाइए कि एज पर टंडन कमेटी व्हाट इज दी परमिसिबल बैंक फाइनेंस। जल्दी से सॉल्व करते जाइए। ये मेथड 1947 में, रिकमेंडेशन 1947 में आई थी। नाउ एज पर मेथड 1, ठीक है, टंडन कमेटी का कहना है कि नेट वर्किंग कैपिटल, यानी नेट वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या हो गया? वो वर्किंग कैपिटल जो कि आपको खुद से अरेंज करनी है, ठीक है, जो आपको खुद से अरेंज करनी है उसे हम क्या बोलते हैं? नेट वर्किंग कैपिटल। दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज मार्जिन मनी और मार्जिन। ठीक है, ये कितना होगा? दिस इज 25% ऑफ योर वर्किंग कैपिटल गैप। ये आपको खुद से अरेंज करना पड़ेगा, यानी कि मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस कितना हो जाएगा? 75%। 100% में से 25 तो यहां चला गया, तो 75% ऑफ वर्किंग कैपिटल गैप। अभी हमने जस्ट इस क्वेश्चन में निकाला था, वर्किंग कैपिटल गैप था 220, करेक्ट। अब 220 का अगर मैं 75% निकालू, ठीक है, अब इसमें आपको दो आ सकते हैं क्वेश्चन। आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि भाई मार्जिन मनी कितना होगा या फिर नेट वर्किंग कैपिटल कितनी होगी, तो आप उसमें क्या करोगे? 25% बता दोगे, ठीक है। और अगर आपसे पूछा जा रहा है मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस, जैसे इस क्वेश्चन में, तो आप बोल दोगे कि वो कितना होगा? 165, ठीक है। अगर आपसे 25% बोला होता तो आप वो भी निकाल सकते थे, करेक्ट। अब हमारा 165 तो ऑलरेडी हो चुका है, तो ये कितना हो जाएगा? 55, ठीक है। तो 55 लाख हमें खुद अरेंज करना पड़ेगा और बाकी का 165 की लिमिट है। नेक्स्ट वन, व्हाट इज द मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस एज पर टंडन कमिटी मेथड 2। टंडन कमिटी ने दो मेथड दिए थे, मेथड 1 एंड मेथड 2। मेथड 1 में आपको क्या बोला? 75% ऑफ वर्किंग कैपिटल गैप आपको फाइनेंस के रूप में मिल सकता है, 25% आपको खुद से अरेंज करना पड़ेगा।
सेकेंड मेथड में इन्होंने क्या बोला कि नेट वर्किंग कैपिटल का 20 नेट वर्किंग कैपिटल जो आपको मैनेज करनी है दैट इज 25% ऑफ टोटल करंट असेट, ये आपको खुद से अरेंज करना है, ठीक है। तो यानी कि मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस कितना हो जाएगा, 75% ऑफ करंट एसेट, टोटल करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटीज अदर देन बैंक फाइनेंस, या फिर हम बोल सकते हैं कि टोटल करंट एसेट का जो हमने परसेंटेज निकाला है हम उसको माइनस कर देंगे वर्किंग कैपिटल गैप से, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग सॉल्व कर लेते हैं। टोटल करंट एसेट है हमारे 370, ठीक है, इसका 25% निकालते हैं। 370 का अगर मैं 25% निकालूं, ठीक है, तो ये हो गया 92.5, करेक्ट। अब मेरा वर्किंग कैपिटल गैप कितना था, 220 था, करेक्ट। और वर्किंग कैपिटल गैप 220 कैसे आया वो हमने पहले भी सॉल्व करा हुआ है ना। 370 माइनस 350 माइनस 200, 200 क्या है, कैश क्रेडिट जो हम एक्सक्लूड करेंगे विच इज बैंक फाइनेंस, ठीक है। आई होप यहां तक क्लियर है। अब 220 में से 92.5 हम माइनस कर देते हैं, तो हमारा आंसर आ गया 127.5। इतना फाइनेंस हमको अरेंज हो पाएगा, दिस इज द अमाउंट ऑफ फाइनेंस दैट विल बी अरेंज्ड, ठीक है। यानी कि आपने क्या करा, आपने वर्किंग कैपिटल गैप में से माइनस कर दिया 25% ऑफ टोटल करंट असेट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है और ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसके अगले दो क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइंड आउट द करंट रेशियो एज पर टंडन कमिटी मेथड 1। आपको टंडन कमिटी मेथड 1 के अकॉर्डिंग करंट रेशियो निकालना है। अब हमारे करंट एसेट कितने हैं, 370, ठीक है। करंट लाइबिलिटीज कितनी है, हमारे क्रेडिटर्स है 100, अदर करंट लाइबिलिटीज है 50, ठीक है। अब हम कैश क्रेडिट क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि वो ऑलरेडी हमारी जो मेथड 1 की लिमिट थी उसमें इंक्लूड होगा। मेथड 1 में हमारा जो लिमिट आ रहा था दैट इज 165, तो हम इसे 165 को ऐड कर देंगे, तो हमारा डिनोमिनेटर हो जाएगा 265 प्लस 50 विच इज 315 और 315। नाउ लेट्स डिवाइड 370 divided by 315, this will give us 1.17 is to 1 का रेशियो, ठीक है। तो आंसर यहाँ पे नन ऑफ दीज होगा, राइट, एंड ये हो जाएगा 1.17 is to 1, ठीक है। अब ये 165 कैसे आया मैं आपको बता देती हूँ। हमने क्या क्या लिया है, हमने क्रेडिटर्स लिए हैं, हमने अदर करंट लाइबिलिटीज लिया है, प्लस हमारी जो मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस था वो तो हमारा कैश क्रेडिट की जगह ही आ जाएगा ना। अब उसमें 200 तो है ही, करेक्ट, तो वो कितना रह गया है बस अब 165, तो वो करंट लाइबिलिटी कितना होगा, करंट लाइबिलिटी में कितना पार्ट जाएगा, 165। सिमिलरली करंट रेशियो आपको फाइंड करना है एज पर मेथड 2, ठीक है। तो सेम फॉर्मूला है, करंट एसेट अपॉन करंट लाइबिलिटीज। करंट एसेट हमें पता है 370 है, करंट लाइबिलिटीज में हम क्रेडिटर्स लेंगे, अदर करंट लाइबिलिटीज लेंगे, और हमारा जो लिमिट था एज पर मेथड 2 जो हमने यहाँ पे कैलकुलेट करा था विच इज 127.50, हम उसे लिख लेंगे। तो अगर हम इसे ऐड करते हैं तो दिस विल बी 100 प्लस 50 प्लस 127.50, हमारा डिनोमिनेटर आ गया 277.5। लेट्स डिवाइड दिस 370 divided by 277.5 which will give us 1.33 is to 1, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी विच इज 1.33 is to 1। आई थिंक ये ऑप्शन चेंज नहीं हो पाए हैं, राइट। सो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 1.33 is to 1। फिर से मैं बता देती हूँ, 100 हमने यहां से लिया जो कि क्रेडिटर्स है, करंट लाइबिलिटीज हमने ली 50 प्लस मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस एज पर मेथड 2
ठीक है, कितना था 127.50, तो हमने उसको यहाँ पे लिख लिया, तो हमारी लिमिट ये बन गई। करेक्ट। नाउ लेट मी टेल यू, लास्ट के जो 4 क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस करे हैं ये काफी इंपॉर्टेंट है। मेथड 1 हो गया, मेथड 2 हो गया, इसके बेस्ड करंट रेशियो हो गए, ये काफी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको इनको एग्जाम से पहले जरूर रिवाइज करके जाना है, और ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को पढ़ने के लिए, ठीक है, आप मेरे साथ रेगुलरली ज्वाइन कर सकते हैं इस सेशन को, जो कि 6:30 बजे होता है। ठीक है, आपका ये जो सेशन है ना,